एवरीवन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th क्लास ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ 2 ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ 2 ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 4 ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਗੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਰੰਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਡਸ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ। ਹੁਣ 4.1 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ABCD। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ABCD, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, CD ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ AD ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ AC ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਫ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ B ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ C ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ D ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। AB ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ BC ਗਿਵਨ ਹੈ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ CD ਗਿਵਨ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ AD ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ AC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ AC ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਫ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਦੇਖੋ ABC ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ADC ਇਹ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਲੈਂਥ AC। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ AC। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ। AC 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ D ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ B। ਸਾਨੂੰ ABCD ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ AD, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ D। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ AD ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਾਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਰਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ DC ਆ, DC ਦੀ ਲੈਂਥ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲਓਗੇ C, क्योंकि DC की लेंथ है, C ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਸ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ। 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੰਪਾਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਕਸ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ D ਪੁਆਇੰਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ AD ਐਂਡ CD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। AD ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਸੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ DC ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ AB ਦੀ ਲੈਂਥ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਾਸ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ A ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਰਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਾਸ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ C ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਰਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਕ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ AB ਐਂਡ BC ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ABCD ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੰਪ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ JU ਦੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ UM ਦੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, MP ਦੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ PJ ਦੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ PU ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਫ ਸਕੈਚ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ठीक है जी, ये अपने को कोऑर्डिनेटर होगी एंड इसका नाम ड्रा कर दो। जंप क्या है, JUMP। ठीक है जी, कदे भी ये नहीं होना चाहिए कि जिमें आपां नूं क्या है ना JUMP आपां ने इस तरह काउंटिंग दे विच ही इन्हां दा नाम राइट करना है। ये नहीं हैगा कि असीं इत्थे U लिख लिया इत्थे P लिख लिया। ठीक है जी, ਜਾਂ फिर इत्थे U पा लिया इत्थे M पा लिया। इस तरीके नाल नहीं, जो भी साडे कोले नाम गिवन होणगे। ठीक है जी, जिवें जंप क्या है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ, JU ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ UM ਹੈਗਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ MP ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ PJ ਹੈਗਾ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ PU ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ। ठीक है जी, ये हैगा 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। देखो जो ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ स्केल एंड पेंसिल की हेल्प नाल 6.5 सेंटीमीटर जिहड़ी हैगी आ लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है जी, सब तो पहला की करोगे तुसी स्केल एंड पेंसिल की हेल्प नाल 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे एंड उसका नाम लवोगे तुसी PU। तो इस लाइन का नाम की हो गया PU। इट मीन जो भी मेरे को जिहड़ी मेरी कोआर्डिनेटर बनी है उसका जो डायगोनल सी वो मैं सब तो पहला ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, इस तो बाद देखो
अपने को एक ए वाली ट्रायंगल बनी जा रही है एंड एक ए वाली ट्रायंगल बनी जा रही है। हुण तुहाडी मर्जी है, या तो आ वाली पहला ड्रॉ कर लो या फिर आ वाली ड्रॉ कर लो, ठीक है जी, दोनों चो कोई भी ड्रॉ कर लो। हुण अगर मैं लैके चलना पहला ए वाली, ठीक है जी, ए वाली लैके चलना तो देखो मेरे को की आऊगा, अगर मैं देखो आप ये वाली साइड जे पॉइंट लै रहे हैं, ठीक है जी, तुसी जे वाला पॉइंट इस वाली साइड भी लै सकते हो, ठीक है जी, एम वाला पॉइंट इस साइड लै सकते हो, थोड़ी मर्जी किवें मर्जी कर लो। आपां की करांगे, हुण देखो जो असीं जे पॉइंट ये वाली साइड लै रहे हैं, ठीक है जी, उपर वाली साइड लै रहे हैं जे पॉइंट, तो उहदे लई साडे कोल किहड़ियां लाइनस हो गईयां, पी जे एंड जे यू। इट मीनस असीं की करांगे, सब तो पहला पी जे अगर असीं ड्रॉ करिए, पी जे ड्रॉ करिए तो पी जे की लेंथ हैगी साडे कोल 4.5 सेंटीमीटर। इट मीनस तुसीं की करोगे, तुसीं अपने कंपास नूं 4.5 सेंटीमीटर ओपन करोगे, ठीक है जी। 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करन तो बाद जिहड़ा साडे कोल पी पॉइंट है, ठीक है जी, पी पॉइंट नूं तुसीं सेंटर लैट करोगे। सेंटर लैट करन तो बाद इस पॉइंट के उपर कंपास रख के एक आर्क लगा दोगे इस तरीके नाल, ठीक है जी, आर्क लग गई। इस तो बाद हुण अपने कोल हैगा जे यू 3.5 सेंटीमीटर। इस तो बाद तुसीं कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन करोगे एंड जो तुहाडे कोल पॉइंट हैगा यू नूं सेंटर लैंदे हुए, ठीक है जी, 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एंड इस वाले पॉइंट पे रख के सेंटर पे इस तरीके नाल तुसीं आर्क ड्रॉ कर दोगे, ठीक है जी। इट मीनस सपोज कर लो तुहाडियां दोनों आर्क्स इस तरीके नाल इस पॉइंट के उपर इंटरसैक्ट करनी, ये वाली आर्क्स जिस भी पॉइंट के उपर इंटरसैक्ट करनी है, ठीक है जी। मेरे को तो हम इतने कंपास नहीं है, तुसीं कॉपी ते कंपास नाल ही करना है, विदाउट कंपास ये तुहाडा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हुण देखो जिस भी पॉइंट के उपर तुहाडियां दोनों आर्क्स जिहड़ियां हैगियां इंटरसैक्ट कर गईयां, ये वाले पॉइंट ते इंटरसैक्ट कर गईयां, ये वाला पॉइंट साडा की हो गया जे पॉइंट, ठीक है जी। जिस भी पॉइंट ते इंटरसैक्ट कर गईयां उस तो बाद असीं उस पॉइंट नाल अपने दूसरे पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दांगे। इट मीनस पी जे एंड जे यू नूं असीं ज्वाइन कर दांगे स्केल की हेल्प नाल। हुण पी जे की लेंथ हैगी साडे कोल 4.5 सेंटीमीटर एंड जिहड़ी हैगी जे यू की लेंथ हैगी साडे कोल 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हुण एक जिहड़ी ट्रायंगल हो तो साडी ड्रॉ होगी। हुण आपां ये वाली ट्रायंगल ड्रॉ करांगे, इहदे लई हुण देखो साडे कोल नीचे होगा एम पॉइंट, ठीक है जी, जिथे भी साडियां आर्क्स कटणगीਆਂ तुहाडा एम पॉइंट हो। इट मीनस असीं की करांगे, जिहड़ी कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करांगे, 5 सेंटीमीटर ओपन करके साडा जिहड़ा हैगा पी पॉइंट नूं सेंटर लैफ्ट करते हुए, ठीक है जी, पी पॉइंट के उपर आपां अपने कंपास का पॉइंट रख के इस तरीके नाल जिहड़ी आर्क ड्रॉ कर दांगे, ठीक है जी। एंड फिर असीं 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करांगे एंड यू नूं सेंटर लैंदे हुए इस तरीके नाल उल्टा आपां इत्थे एक आर्क लगा देंगे। जिस पॉइंट ते साडियां दोनों आर्क्स इंटरसैक्ट हो गईयां वो साडा हो गया एम पॉइंट, ठीक है जी। एंड असीं इन्हां नूं आपस दे विच की कर दांगे ज्वाइन कर दांगे, ठीक है जी। तो हुण देखो साडे कोल जिहड़ी एम की लेंथ हैगी 5 सेंटीमीटर एंड जिहड़ी हैगी है एम यू की लेंथ हैगी अपने कोल 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हुण तां साडे कोल की होगी जे यू एम पी की होगी जंप कोऑर्डिनेटर, यही असीं ने कंस्ट्रक्ट करनी सी, ठीक है जी। इसी साडे कोल फर्स्ट क्वेश्चन दा सैकेंड पार्ट। हुण आपां चलदे हां नैक्सट थर्ड पार्ट ते। नैक्सट हैगा फर्स्ट क्वेश्चन दा थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट दे विच सानूं की कहता, कहंदे एक पैरेललोग्राम है मोर, ठीक है, मोर पैरेललोग्राम है जिहदे विच OR दी लेंथ सानूं दित्ती 6 सेंटीमीटर एंड RE दी लेंथ दित्ती 4.5 सेंटीमीटर एंड EO दी लेंथ दित्ती सानूं 7.5 सेंटीमीटर। देखो पैरेललोग्राम की हुंदी है, पैरेललोग्राम दी आइडेंटिटीज पढ़ियां सी असीं कि जो पैरेललोग्राम हुंदी है उहदियां ऑपोजिट साइड्स आपस दे विच इक्वल हुंदियां ने, ठीक है जी। ये वाली डायग्राम पैरेललोग्राम दी होगी, हुंदी तां कोऑर्डिनेटर है, ठीक है जी। कोऑर्डिनेटर दा नाम आ गया साडे कोल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहता मोर, ठीक है जी, MORE ये साडे कोल एक पैरेललोग्राम। हुण पैरेललोग्राम दी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां ने, ठीक है जी, ऑपोजिट साइड इक्वल होंदियां ने, इसलिए देखो की होगा साडे कोले जिहड़ा ME आ ME ये वाला इज इक्वल टू किदे होगा OR दे, ठीक है जी। एंड ER इज इक्वल टू MO दे, ER इज इक्वल टू MO दे एंड ये वाली साइड इहदे इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी एंड साडे कोल इहदे ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हुंदे ने आपस दे विच पैरेललोग्राम जो भी हुंदी है साडे कोल, ठीक है जी। ये आइडेंटिटीज हुंदियां ने एंड देखो अपने कोल देती EO
ठीक है जी। ईओ अपने को एक डायगोनल हो गया, डायगोनल भी इक्वल होंगे ने पैरेललोग्राम दे। ईओ सानू की देती 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हुण इस तो बाद देखो ओ आर अपने को हैगी 6 सेंटीमीटर। अगर ओ आर 6 सेंटीमीटर तो एम ई भी, क्योंकि ये आपस के विच इक्वल है, तो इनू असीं की लिखांगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इट मीनस ये दोनों साडे कोल की हो गई 6 सेंटीमीटर एंड ये दोनों अपने कोल की हो जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सानू जिहड़ा हैगा आर ही गिवन है, ई आर जा आर ही सेम ही तुहाडे कोले लाइन है, ठीक है जी। ये गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ये इहदे ऑपोजिट है, इट मीनस ये भी साडे कोल की आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। अगर असीं देखिए हुण साडी डायग्राम पहला वाली डायग्राम की तरह ही बन गई, ठीक है जी। देखो हुण साडे कोल 4 साइड्स गिवन हो गई एंड एक साडे कोले डायगोनल गिवन हो गया। उसी तरीके नाल ही आपां इहनूं कंस्ट्रक्ट कर दांगे। किवें करांगे, देखो हुण साडे कोल डायगोनल गिवन है ईयू, इट मीनस असीं स्केल एंड पेंसिल की हेल्प नाल सब तो पहला की ड्रॉ करांगे ईओ लाइन। ईओ जो साडे कोल हैगी है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 7.5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन लगा लांगे असीं अपनी कॉपी के उपर स्केल की हेल्प नाल। उस तो बाद असीं की करांगे, या तो उपर वाली साइड तुसीं एम पॉइंट ले लो या फिर आर ले लो, ठीक है जी। मैं इस बार आर पॉइंट जिहड़ा हैगा वो उपर वाली साइड ले रही हूं। इट मीनस की हो जाऊगा फिर पहला 4.5 सेंटीमीटर, ये आर की लेंथ है साडे कोले 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करांगे एंड ई नूं असीं सेंटर लवांगे। इस तरीके नाल असीं आर्क ड्रॉ कर दांगे। सिमिलरली फिर असीं जिहड़ी हैगी साडे कोले ओ आर की लेंथ हैगी 6 सेंटीमीटर एंड ओनू असीं जिहड़ा हैगा सेंटर लैंदे होए इत्थे अपनी कंपास का पॉइंट रखांगे एंड इस तरीके नाल असीं आर्क ड्रॉ कर दांगे, ठीक है जी। ये जिस भी पॉइंट के ऊपर दोनों आर्क्स इंटरसैक्ट करदियां कट गईयां वो साडा हो गया आर पॉइंट, ठीक है जी। एंड असीं स्केल एंड पेंसिल की हेल्प नाल ई आर नूं ज्वाइन कर दांगे एंड आर ओ नूं ज्वाइन कर दांगे। तो ये साडे कोल ये वाली जिहड़ी हैगी ट्रायंगल बनी जा रही सी, पूरी ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। देखो ई आर की अपने कोले लेंथ हैगी सी 4.5 सेंटीमीटर एंड ए वाली लेंथ हैगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इस तो बाद असीं नीचे वाली साइड अपना जिहड़ा हैगा कि ट्रायंगल ड्रॉ हुई है, दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। हुण एम पॉइंट इट मीन साडे कोले नीचे वाली साइड आऊगा। हुण असीं की करांगे अपने कंपास नूं 6 सेंटीमीटर ओपन करांगे, ठीक है जी। एंड ई पॉइंट नूं सेंटर लवांगे, इस तरीके नाल आर्क ड्रॉ कर दांगे। इस तो बाद असीं 4.5 सेंटीमीटर साडी कंपास ओपन करांगे एंड ओ पॉइंट नूं सेंटर लैंदे हुए नीचे वालों नूं आर्क ड्रॉ कर दांगे एंड दोनों आर्क्स जिस पॉइंट के उपर इंटरसेक्ट करनियां वो साडा हो गया एम पॉइंट, ठीक है जी। असीं स्केल एंड पेंसिल की हेल्प नाल ई एम एंड ओ एम नूं ज्वाइन कर दांगे। देखो ई एम की अपने कोले जिहड़ी हैगी है लेंथ, ई एम की अपने कोले लेंथ हैगी है 6 सेंटीमीटर एंड अगर असीं ओ एम की लेंथ चेक करिए वो साडे कोले 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके नाल असीं अपनी मोर जिहड़ी हैगी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी साडा थर्ड पार्ट। हुण आपां चलदे हां नैक्सट फोर्थ पार्ट। हाँ जी, नैक्सट आप लोग लगा फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट दे सानू कहता रोम्बस बेस्ट, ठीक है जी, जिहदे सानू बीई दी लेंथ देती 4.5 सेंटीमीटर एंड ईटी दी लेंथ देती सानू 6 सेंटीमीटर। हुण रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी हुंदी है, असीं बेस्ट रोम्बस जिहड़ी हैगी ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। हुण ये अपने को लिखी होगी बेस्ट। आपां एक कोऑर्डिनेटर लैने हैं, ठीक है जी, जिहदा नाम अपने को हैगा BEST, ठीक है जी। बेस्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BE ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 4.5 सेंटीमीटर एंड ET ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ठीक है जी। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਥਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋम्बस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ all sides are equal, ठीक है जी। सारियां साइड्स जो रोम्बस दी होंदी ने आपस दे विच इक्वल होंदियां ने। इट मीनस फिर साडे कोल की हो गया, देखो BE इज इक्वल टू की होगा ES ते इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू BT, सारे की हो जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इट मीनस ए वाली लेंथ भी साडे कोल 4.5 सेंटीमीटर होगी, ए वाली लेंथ भी 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। ਹੁਣ देखो अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ देखिए तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ठीक है जी। 4 साइड्स गिवन ने एंड 1 डायगोनल गिवन है। तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ 6 सेंटीमीटर
ठीक है जी। असी अपनी कॉपी के उपर पेंसिल एंड स्केल की हेल्प नाल 6.5 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन असी ड्रॉ करांगे जिसका नाम है टी ई। ठीक है जी। हुण देखो या तो एस लै लो या फिर बी लै लो, उपर वाली साइड कोई भी पॉइंट लै सकते हो। हुण अगर मैं लवां बी पॉइंट, ठीक है जी, बी पॉइंट लैके चली हाँ तो मेरे को टी तो बी की लेंथ हैगी 4.5 सेंटीमीटर। हुण तो असीं 4.5 सेंटीमीटर दी आस्क लगाउणियां ने सारियां, क्योंकि सारियां दी लेंथ की है 4.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है जी। 4.5 सेंटीमीटर असीं अपने कंपास नूं ओपन करांगे एंड टी पॉइंट नूं सेंटर लैंदे हुए आर्क लगा देंगे। सिमिलरली उसे लेंथ नाल सी पॉइंट नूं जिहड़ा हैगा ई पॉइंट नूं सेंटर लैंदे हुए इस तरीके नाल असीं आर्क ड्रा कर देंगे एंड जो भी पॉइंट के उपर ये दोनों आर्क्स इंटरसैक्ट कर गया वो साडा हो गया बी पॉइंट। ठीक है जी। असीं की करांगे बी पॉइंट के उपर बी टी नूं स्केल एंड पेंसिल की हेल्प नाल ज्वाइन कर देंगे एंड बी ई नूं ज्वाइन कर देंगे तो इन्हां दी लेंथ हैगी 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। दैन असी सेम लेंथ साडी कंपास की सेम लेंथ ही उपर रखनी है 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके नाल असी नीचे वाली नूं जिहड़ी हैगी ये दोनों साइड्स से पहला असी टी नूं सेंटर लैंदे हुए अपनी आर्क लगा देंगे 4.5 सेंटीमीटर, फिर ई नूं सेंटर लैंदे आर्क लगा देंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। दोनों आर्क्स जिस पॉइंट के उपर इंटरसैक्ट कर गई वो अपना हो गया एस पॉइंट। ठीक है जी। फिर असी स्केल एंड पेंसिल की हेल्प नाल एस टी एंड एस ई नूं ज्वाइन कर देंगे। ये अपने को होगी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी अपने को होगी 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो वी ई एस टी साडे कोल की होगी एक रोम्बस होगी जो असी कंस्ट्रक्ट करना सी। ठीक है जी। इस अपनी अज की क्लास जेकर तुहानूं सारे समझ लग गए तो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दस्सिओ एंड रेड बटन प्रेस करके चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहे। आपां मिलते हैं नैक्सट टॉपिक नाल, तद तक के लिए थैंक यू।